Educational Guru 786. Today in this video we are going to start with metals and non-metals chapter for class 10 that is of chemistry. So let's start with today's video, but if you guys haven't subscribed this channel, do it right now. And let's start with metals and non-metals, important equations which are likely to ask in exams. But first of all, we have some activities, so let's start with these activities. This activity is basically related to the metals and non-metals experiment, that is this metal or non-metal. So let's move to important things. Here in this figure you can see that metals are good conductor of electricity. Now here are some exceptions for metals, that all metals except mercury exist in solid temperature, solid at room temperatures. Means other metals exist in solid or maybe sometimes in gaseous state, but mercury is a metal that is only used to exist as a liquid at room temperature. Okay. Then the second exception is gallium and caesium are the low melting points metals. So they have that type of low melting points that if you keep them on your palm, they'll easily get evaporate in the air. Then we have iodine. Iodine is a non-metal but it is lustrous. Means non-metals जो हैं, they are not lustrous, ठीक है? Non-metals dark color के होंगे and they are not going to show their shine. But the iodine, in iodine, non-metals do show luster. Then we have carbon. Carbon is a non-metal but it can exist in different forms. Non-metals जो हैं, we cannot make different things or different forms of non-metals, but carbon is a non-metal through which we can present different forms of it. So each form is called an allotrope. Means uska physical structure is different but chemical structure sometimes is same and all. So diamond is an allotrope of carbon, is the hardest natural substance. Diamond in chapter 4, I hope you guys are going to study this. So allotropes of carbon है diamond and it is the hardest natural substance और इसका high melting point and boiling point है. Am I right? जो non-metal है उसका high melting and boiling point नहीं होता, but diamond does have. Then is graphite. Graphite भी एक allotrope of carbon है but it is lustrous because इसकी चमक है, जो हम पेंसिल का lid देखते हैं उसका टॉप पार्ट अगर हम पेंसिल का देखें जैसे ऐसे होता है जो ये वाला पार्ट, so we can see that it is lustrous. Am I right? So it is lustrous. Then alkyl potassium, ये बहुत ही soft metals हैं. Soft, ठीक है, they are hard most of the time, but these are the metals, lithium, sodium and potassium are the metals that have low densities and low melting point so that they can cut with knife also. Now let's see some chemical properties of metal. So when metal reacts with oxygen, ठीक है, when metal is reacting with oxygen, it will form metal oxide. For example, if we have कॉपर, ठीक है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन दोगे, उसको ऑक्सीजन में रखोगे, देन इट विल फॉर्म अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है, 2 इधर लगेगा. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट बैलेंसिंग द इक्वेशंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 itself. यस, सो नाउ इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बनाना है, ठीक है, मीन्स एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट. यस, so aluminium is also a metal and when you add metal with oxygen or react with it, so metal oxide is formed. ओके, सो इधर भी एल्यूमिनियम है, उसको ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट किया, देन इट इज एल्यूमिनियम Al2O3. बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, 3 हम लिखते ही नहीं. क्लियर? देन आ गया अब एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से होते हैं. पहली बात तो ये समझ लो कि एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. अब ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या है और ये ऐसे क्यों है? बिकॉज एम्फोटेरिक मेटल्स आर दोज मेटल्स विच कैन चेंज देयर प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दे वांट टू फॉर्म एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय देम आर सॉल्ट. See what happens ना, जब एम्फोटेरिक की हम बात कर रहे हैं तो ये किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये कभी बेस बन जाएंगे या ये कभी एसिड बन जाएंगे, ठीक है. अगर ये बेस बने हुए हैं तो फिर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एम आई क्लियर? इधर यही चीज़ लिखी हुई है, वी आर गोइंग टू रीड इट. लेट मी चेंज द कलर नाउ. Yes, so copper oxide reacts with HCl, means metal oxide base है in nature. So जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, metal oxide जो होता है ना, it is always base. Am I clear? It is always base. And non-metal oxide
is always acid. Am I clear? So what happens, yes, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड जो हैं ये कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं which shows both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which shows both acidic and basic behaviors are known as amphoteric oxides. Am I clear? जैसे कि अभी हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को अपना एग्जाम्पल लेते हुए माना है, ठीक है. सो इधर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl, मतलब अभी क्या है, ये बेस का फॉर्म यूज़ कर रहा है एंड दिस इज एसिड. बेस के साथ एसिड रिएक्ट होगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर. देन आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड वापस से. अब ये क्या कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ये बन चुका है, सॉरी, नाउ इट इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड इट इज रिएक्टिंग विद बेस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनाएगा ये, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर. नाउ सोडियम एल्यूमिनेट को याद रखना ऐसे, तुम्हें पता है कि एम्फोटेरिक मेटल्स सॉल्ट एंड वाटर बनाने वाले हैं, ठीक है. यू नो दैट इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वाटर के लिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के तो तुम्हें बाहर निकालने ही पड़ेंगे. बाकी जो बचा वो लिख दो. सोडियम बचा, सोडियम रिएक्टिव सीरीज में ज़्यादा ऊपर आता है, सो यू विल राइट सोडियम इन फर्स्ट सेक्शन, ठीक है. बट अब ये बात आ गई कि अभी हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता ही नहीं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम, जस्ट लिसन टू मी राइट नाउ. नाउ सोडियम लिख दिया, इसके बाद एल्यूमिनियम लिख दिया एंड देन इधर 3 ऑक्सीजन हैं, इधर एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, तो इधर से 2 ऑक्सीजन इधर आ जाएंगी, ठीक है, इसलिए हमने O2 डाला इधर. एम आई क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, यस. सो अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स दे आर इन फेवर टू रिएक्ट विद वाटर. अब जैसे हमने मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाया था, तो वो फिर क्या बना, उसने मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है. अब यही मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सो दिस विल फॉर्म मेटल का हाइड्रोक्साइड. Isn't it crazy? अब मेटल ऑक्साइड जो बना उसको आपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, इसने बना दिया मेटल हाइड्रोक्साइड. दैट मीन्स इसने बना दिया एल्कली, मतलब ये मेटल ऑक्साइड तो हमेशा एक बेस रहेगा, इसको आपने वाटर में डाल दिया. अब वाटर सॉल्युबल बेस को चैप्टर नंबर 2 में क्या बोलते थे, एल्कली बोलते थे ना, वही चीज़, दैट इज सेम लाइक दैट. सो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया. पोटाशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवा के पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया. क्लियर? सो अभी इन एक्टिविटी से हम क्या बोल सकते हैं, नाउ हियर आर सम कंक्लूजन्स व्हिच वी कैन ऑब्जर्व. यस, अलग अलग मेटल्स ने अलग अलग रिएक्टिविटीज शो करनी है ऑक्सीजन के थ्रू. अब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्टिविटीज कैसे शो हो रही हैं, यू नो दैट पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं दैट आर सो रिएक्टिव, ठीक है. सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रियसली दैट दे कैच फायर. अब पोटाशियम एंड यस, पोटाशियम एंड सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये सीधा आग पकड़ लेते हैं. एम आई क्लियर? सीधा आग लगा देते हैं ये लोग. एंड अगर ये ओपन फायर, मतलब अगर इन लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, तो ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो बाद में बनेगा, पहले आग लग जाएगी. एम आई क्लियर? सो यस, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, क्योंकि अगर ये बाहर रह गए तो ये इतनी तेज़ आग पकड़ेंगे दैट नो वन कैन प्रिवेंट देम एट दैट टाइम. अब बात आ गई हमारी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड की. नाउ व्हाट दे से, ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे ये रिएक्ट करते हैं एंड इनके सर्फेसेस जो हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ठीक है. अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बात की बात है, पहले हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, देन कौन सा बोला मैं, यस, जिंक ऑक्साइड ले लो एंड लेड ऑक्साइड ले लो, ठीक है. ये चारों जो हैं, यू गाइस कैन से कि ये एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है. जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, उसने क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, तो वो एक वाइट कलर की लेयर बनी थी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. वैसे ही इन चारों के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है जो इनको फर्दर प्रिवेंट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से. एम आई राइट? ठीक है. Yes. So iron does not burn in heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in flame. See, जब आप लोहे को, आपने कभी लोहे के जो काम करते होंगे उनको देखा होगा, जब लोहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आयरन के ऊपर आप बहुत तेज़ चिंगारियाँ आपको निकलती है. जैसे कोई अगर आयरन के ऊपर कुछ हीटेड कुछ डालता है या उसको शेपिंग करता है, तो इस तरह की कुछ चिंगारियाँ से निकलती हैं. एम आई राइट? ठीक है, ये चिंगारियाँ हैं, क्योंकि ये उसकी चिंगारियाँ निकलेंगी, फ्लेम नहीं निकलेगा उसमें से, ठीक है. देन कॉपर डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है. अब कॉपर है, हमने फर्स्ट चैप्टर पे एक वो किया था ना, एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कॉपर है, ठीक है, उसने क्या करना है, ये कॉपर बन गया, ठीक है. हुआ क्या, जो कॉपर था हमारे पास, उसको जब हमने बर्नर पे हीट किया था, तो कॉपर का क्या हो गया था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हो गया था. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया, और उस कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है. एम आई राइट? ठीक है, एम आई क्लियर? ओके. नाउ एनोडाइजिंग पढ़ते हैं.
एनोडाइजिंग क्या चीज़ है? नाउ एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थिक ऑक्साइड लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की। अब वो कैसे होता है? थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, मतलब एल्यूमिनियम को आपने एयर पे एक्सपोज कर डाला, उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना डाला। अब ये क्या बोल रहा है? द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर करोजन। अब इसकी वजह से क्या है? हमने बोला था कि इसकी भी एक व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है इसके ऊपर, व्हाइट कलर लेयर। अब जो ये व्हाइट कलर की लेयर इस पर बन जाती है ना, यही इसको फर्दर करोजन मतलब इसका मेटल खराब होने से बचाती है, ठीक है। The resistance can be removed by further by making the oxide layer thicker. और ज़्यादा further oxidation से क्या होगा? उसकी लेयर थिक हो जाएगी, लेयर थिक, एल्यूमिनियम लेयर थिक हो जाएगी। So what happens next? During anodizing, clean aluminium article is made the anode and electrolyzed with dilute HCl. जब आप अब देखो, अब आपने इसी लेयर को, मतलब एल्यूमिनियम को आपने H2SO4 में डाल दिया, ठीक है। व्हाट विल हैपन? एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। अब इससे हम क्या कहना चाहते हैं कि देखो, जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल है ना, वो एनोड पे चले जाएगा, मतलब एनोड पे रहेगा। जब उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी डाली HCl में, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ऑक्सीजन गेट इवॉल्व्ड एट द एनोड, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर। ऑक्सीजन, सी गाइस क्या होगा एक्चुअली, एल्यूमिनियम सल्फेट को जब आपने H2SO4 में डाला, नाउ व्हाट विल हैपन? लेट मी चेंज द कलर। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, जस्ट अ मिनट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने H2SO4 में डाल दिया। अब क्या होगा? नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ साथ वाटर प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। अभी इसी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है, व्हाट इट गोइंग, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड यानी कि नेगेटिव साइड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और वो एल्यूमिनियम के साथ एक बहुत ही थिक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगी। अब ये ऑक्साइड की लेयर से क्या होगा? आराम से दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन एट्रैक्टिव फिनिश। इसकी वजह से क्या होगा? एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स पे अगर ये लेयर आ गई तो उसको एक बहुत ही अच्छा फिनिश मिल सकता है। सो नाउ वी हैव some more conclusions about our metals. Sodium is the most reactive of the samples of metals taken. The reaction of magnesium is vigorous. सोडियम पहले आ जाता है हमारा सोडियम, फिर हमारे पास आ जाता है हमारा पहले हमारे पास आएगा हमारा पोटेशियम आ गया, उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा सोडियम, देन इज मैग्नीशियम नहीं, इट्स कैल्शियम, देन आएगा हमारे पास मैग्नीशियम। अब ये क्या बोल रहे हैं? लेट्स सी। The reaction of magnesium is vigorous, implying that is not as reactive as sodium. Burning in oxygen decides. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम नहीं बता सकते कि हमारा मेटल्स किस तरह से आ रहे हैं। अब ये देखो, सी व्हाट इज दिस, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। जैसे कि ये एक ग्लास वूल रखा है, ठीक है, इसमें वूल रखी है, वो वाटर सोक करके रखी है। इधर एक मेटल है एंड इधर से हीट किया जाता है, हीट इसके साथ जाएगी एंड इसका वाटर इस पर लगेगा। नाउ इधर से जो भी गैस वगैरह निकलेगी ये इन्होंने इसमें डाली। अब इसमें से निकली हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और वाटर में ऊपर हाइड्रोजन गैस आ गई। समझ रहे हो गाइस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन हियर? जब आप मेटल के साथ वाटर का रिएक्ट कराते हो, पीछे हमने मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया तो उसने मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। इधर हम मेटल के साथ वाटर का रिएक्ट करा के मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। Am I clear? इधर मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा रहे हैं हम लोग। अब मेटल ऑक्साइड के साथ अभी क्या किया था हमने? मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, जस्ट मिनट, यस, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अब मेटल के साथ हम वाटर रिएक्ट करा के मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलवा रहे हैं, ठीक है, जिसका भी हमने पीछे एक्टिविटी देखी। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग? मेटल ऑक्साइड के साथ, आपको दिखेगा नहीं गाइस, रुको एक मिनट, यस। अब हम मेटल ऑक्साइड यानी कि जो हमने ये ऑक्साइड्स बनाए थे, इनको जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो बना देंगे ये मेटल हाइड्रोक्साइड। पीछे भी देखा था ये कैल्शियम पोटेशियम को जब हमने वाटर में डाला तो उसने बना दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अभी हमने देखा था। सो दिस इज द मैटर। चल क्या रहा है इस चैप्टर में?